हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखेंगे कि हम लारावेल में एक टू डू लिस्ट वेब एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। एंड आई एम यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ लारावेल एंड दैट इज़ लारावेल 8। और इस ट्यूटोरियल में मैं स्टाइलिंग की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, स्टाइलिंग नहीं करूँगा उस एप्लीकेशन की। वी विल ओनली राइट द बैकएंड एंड द लॉजिक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो टाइमर स्टार्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि वी हैव टू मेक दिस विद इन अ टाइम फ्रेम। लेट्स स्टार्ट इट। और मैं यहाँ पर एक टर्मिनल खोल ले रहा हूँ अपने फोल्डर पर। मैंने एक नया फोल्डर बनाया है डेट इज़ टेस्मो_1, जिसके अंदर हम अपनी लारावेल एप्लीकेशन रखेंगे, लारावेल न्यू। और प्रोजेक्ट का नाम है टेस्मो। ओके, जब तक लारावेल बिल्डअप कर रहा है इसको, लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस हियर इन लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। Let's create a new database and let's name it tesmo_db. Let's create it. Yeah, database created successfully, and Laravel is still working on our application. And I think just about to complete। और हाँ, इस एप्लीकेशन का कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से शेयर कर दूँगा। So application ready, build something amazing. Yeah, we will do. Let's close our terminal and open our folder inside VS Code। और मैं इस फोल्डर को यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ। अब सॉरी, या वी आर गुड टू गो। सो राइट नाउ what we have, okay, let's just first check the application, like is it running or not. What is this? Just close it. Yeah, sorry. So let's say PHP artisan serve. This will start the Laravel development server so that we can check our application in the local system. Yeah, it's running. So to build a to-do list application, what we need? We need an index page, like it's just like a home page where we can show all our to-dos that we have created. And next we have our create page and an edit page. Create page for creating to-dos and edit page is for editing the to-dos. So let's start. Okay, first of all, let's just make a controller, a model, and migration. um, okay, I've got 4 terminals. Let's delete them. Yeah, but before that, let's connect our database first inside .env file. And here we are, tesmo_db. Let's just save it. And what about our server restarted? And bash में we can run command php artisan not serve, sorry, make। अब हम क्या बना रहे हैं? हम एक मॉडल भी बना रहे हैं, कंट्रोलर भी बना रहे हैं और एक माइग्रेशन भी बना रहे हैं। तो इसके लिए हम तीन तीन कमांड रन नहीं करेंगे अलग अलग। वी विल डू दिस जस्ट विद इन अ वन कमांड। सो लाइक जस्ट से मॉडल, एंड मॉडल का नेम होगा टू डू। और फिर हम एक फ्लैग देंगे -mc, m फॉर माइग्रेशन एंड c फॉर कंट्रोलर। लाइक जस्ट सेव। As you can see, model created successfully, migration created successfully, and yeah, controller created successfully. Let's just check app http controller. Yeah, we have our to do controller, and inside models we have our to do model, and inside migration we have to go inside database directory migrations, and we have a create to do's migration table, sorry. Okay, this is good. And now let's just configure our migration. What I want inside our table is, let's just copy this. We are just preparing the schema of our database. Okay, so here, oh sorry, of our table. टेबल में हम सबसे पहले एक टाइटल का कॉलम रखेंगे जो कि होगा स्ट्रिंग TITLE टाइटल। और फिर हम एक रखेंगे कंप्लीटेड वाला कॉलम जो कि बताएगा कि हमारा टू डू कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है।
सो ये होगा बूलियन कंप्लीटेड या हमें सिर्फ ये 2 कॉलम चाहिए होंगे या, और जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट वो लारावेल खुद ही बना देता है टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके. सो लेट्स जस्ट सेव इट एंड run php artisan migrate. Yeah, migration completed, and now we can check our to do database, sorry, Tesmo database, and we have these nubs, this one Tesmo underscore db, and inside our Tesmo underscore db we have these all tables, and here's our to-dos table, and right now it's empty, but you can see we have a title column and completed column. So migration is created successfully, and now we will configure our model so that it can communicate with our database. We have to assign the mass assignment for our columns, right? So for that, what we can do, we can say protected $fillable, and here we can say, first let's just put here and can say we have our title column and our completed column. Completed, yeah. Okay, we have configured our model also, and now let's just jump on to creating routes, क्योंकि जब तक routes नहीं होंगे हम pages पे कैसे जाएंगे. So हम जाएंगे routes web.php में. हम इस home वाले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे इससे. Let's just create our routes first. Route get /index, and this would be controlled by a controller that we have just created named to do controller class, and inside to do controller we are going to make a function. Let's just name it index, that will control this route. Yeah, and let's just repeat this step 3 times so that we can do this for our create part and our edit part. Create, and here we can say edit. Okay, oh sorry, I forgot to put these. Come on, I know these are silly mistakes, sometimes happen. So we have created index page, index route, create route and edit route. Let's just check. Now we're not gonna check right now because it will not return anything, just a blank page. और या टू डू कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ यूज़ तो कर लिया बट वी हैवंट मेंशन इट हियर. सो वी नीड टू यूज़ app http controllers and our to do controller. Let's just save, refresh, yeah, and app method controllers index does not exist because हमने टू डू कंट्रोलर तो मेंशन कर दिया, बट इसके अंदर अभी तक हमने एक इंडेक्स फंक्शन नहीं बनाया जिसकी मैं बात कर रहा था, मेथड. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टू डू कंट्रोलर खोल लेते हैं, ऐप http कंट्रोलर, एंड हियर वी हैव टू डू कंट्रोलर, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन, लेट्स नेम इट इंडेक्स. और अभी हम इसके अंदर क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे, लेट्स जस्ट से हाय. Let's save it, refresh it, and yeah, we got our high. और यही अब हमें तीनों के साथ दोनों दो के साथ और करना है, that is create and edit. Create and edit. Okay. तो हमारे राउट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे कंट्रोलर के अंदर फंक्शंस क्रिएट हो चुके हैं. अब फंक्शनलिटी तैयार करते हैं. लाइक सबसे पहले हम क्रिएट तैयार करेंगे, क्योंकि जब तक हम कोई टू डू बनाएंगे नहीं तो वो शो कैसे करेंगे, ठीक है. तो हम ओके, दिस इज़ वर्किंग फाइन. सो अब सबसे पहले हम क्रिएट में एक
पेज बना लेते हैं क्रिएट करने के लिए। तो और हम यहाँ पर पहले ही मेंशन करते हैं लेट्स जस्ट से रिटन अ व्यू, और इसको मैं टू डू डायरेक्टरी के अंदर रखूँगा और लेट्स जस्ट से क्रिएट। तो अब सबसे पहले हम एक व्यू बनाते हैं, resources views, and here let's just make a directory name to do, and inside which we're gonna make create.blade.php. yeah, great. अब हमें create.blade.php का एक पेज, हमें ये वाला create वाला पेज रेडी करना है। तो HTML ले लेते हैं और टाइटल डाल देते हैं टू डू। ये क्रिएट पेज है तो क्रिएट डाल देते हैं। बॉडी में एक हेडिंग डाल देते हैं, लेट्स जस्ट से क्रिएट योर टू डू। और फिर इसके अंदर हम एक फॉर्म रखेंगे जिसका एक्शन, पहले हम मेथड ले लेते हैं, मेथड पोस्ट ही रखेंगे, एक्शन होगा। अब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इसको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करना है, एक्शन रखना है। तो लेट्स जस्ट से अपलोड, क्योंकि हम एक टू डू बना रहे हैं और उसको डेटाबेस पर अपलोड करेंगे, राइट। एंड लेट्स जस्ट से एक इनपुट बनाते हैं टाइप टेक्स्ट, और इसको नेम देंगे टाइटल, और एक और इनपुट बनेंगे जिसका टाइप होगा सबमिट, टू सबमिट द फॉर्म। oops and let's just say value is equals to create. Let's check this. Let's go to our create route, and yeah, we have our form. What do you say to keep it in center? For that we can give style to our body and say text align center. Yeah, looks good. And I also need a back button so that I can toggle from create page to home page and from home page to create page, right? Yeah, so right here I can give a break tag and a anchor tag of link index, and let's just say back. Yeah, we have a back button and we're back to index page. ओके, सो फॉर्म रेडी हो चुका है, बट बिफोर दैट हम एक चीज़ और भूल रहे हैं, एक टोकन लगाना, CSRF टोकन। ये जनरली क्या करता है, हमें फॉर्म, लारावेल का जो फॉर्म का सबमिट करने का तरीका है वो काफ़ी सिक्योर है। तो अगर हम जब तक ये वाला टोकन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, लारावेल हमें फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। इसलिए हम ये CSRF टोकन लगाते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और पता करना है, यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लारावेल। सो फॉर्म लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया, बट जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, इस वाले क्रिएट बटन पर, तो ये हमें भेजेगा अपलोड वाले उस पर। तो इसके लिए हमें एक अपलोड नाम से भी राउट बनाना पड़ेगा। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। इंडेक्स जैसे अपलोड, OPLOAD अपलोड, और कंट्रोलर के भी अंदर एक फंक्शन बनाते हैं अपलोड के नाम से, ठीक है। UPLOAD अपलोड। ऐसे टाइपोज काफ़ी होते हैं मुझसे। लेट्स जस्ट नेम इट अपलोड, या। और अपलोड में क्या होना चाहिए, अब मेन फंक्शनलिटी अपलोड में होगी कि वो कैसे डेटाबेस में हमारा टू डू जो हमने बनाया वो भेजेगा, ठीक है। तो अब जैसा कि हम एक फॉर्म का डेटा ले रहे हैं अपलोड के अंदर, तो हम रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट, और ये हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ करी हुई है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और रिक्वेस्ट में मैं ये वाला रिटर्न हटा देता हूँ। अब
सबसे पहले डाइटम करवा के देखते हैं कि रिक्वेस्ट में आकर आ क्या रहा है जब हम फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। रिक्वेस्ट ऑल, लेट्स चेक इट आउट, लेट्स रिफ्रेश, लेट्स नेम Laravel 8, okay, and create. So the post method is not supported. Oh, हमने जो फॉर्म यूज़ किया है वो है हमारा मेथड पोस्ट का, बट लेकिन जो हमने अपलोड का राउट बनाया है वो हमने बनाया गेट, तो हमें यहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा। और यही बेकार चीज़ होती है कॉपी पेस्ट करने की। या ओके, वी गॉट आवर डेटा, और यहाँ पर हमारे पास टोकन है जो भी हमने @CSRF टोकन लगाया था, ये वही वाला टोकन है, और हमारा ये टाइटल आ रहा है। ओके, सो हमारा रिक्वेस्ट ऑल से हमारे पास टाइटल ऑलरेडी आ रहा है, तो हम डायरेक्ट टाइटल ही ले लेते हैं ना, क्योंकि हमें ओवरऑल टाइटल की ही ज़रूरत है। या अब Laravel 8 आ रहा है, दोबारा से चेक कर लेते हैं, लेट्स से Laravel 9। या वी गॉट आवर टाइटल, वेरी वेल। तो इसको अब डाइटम को हटा देते हैं और यहाँ पर इसको एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, लेट्स से टू डू, जो कि होगा रिक्वेस्ट टाइटल। ठीक है, अब हमें इस टू डू को अपने डेटाबेस के अंदर भेजना है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, हम डायरेक्ट मॉडल का यूज़ करेंगे टू डू, और डायरेक्ट मेथड कॉल करेंगे क्रिएट। और हमने जो टाइटल कॉलम बनाया था अपने डेटाबेस में, उसको ऐसे डेटा दे देंगे। ठीक है, टू डू, बट अभी हमने टू डू मॉडल यूज़ किया है तो हमें यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यूज़ ऐप मॉडल्स टू डू। ओके, या वेरी वेल। ओके, लेट्स चेक इट आउट। अभी हम देखते हैं, अभी हमारे टाइटल में कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा टेबल एम्प्टी है, और अभी हम बनाएंगे। बट एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, लाइक यहाँ पर अभी हम सिर्फ टाइटल को ही पॉपुलेट कर रहे हैं अपनी टेबल के अंदर जाकर, हमने कंप्लीटेड के लिए कुछ भी नहीं लिखा, तो ये हमें एक एरर दे सकता है। इसके लिए हम कंप्लीटेड की या तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू बना सकते हैं, या फिर हम इसको नलेबल बना सकते हैं। बट मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करूँगा, क्योंकि जब कोई यूज़र टू डू बनाएगा तो वो ऑलरेडी फॉल्स होगा, आई मीन वो ऑलरेडी इनकम्प्लीट होगा तभी तो बनाएगा। So we can configure this inside our migration to do. Let's type create. Okay, let's just search database migrations, and here we have create to do's table, and here we can specify default false, as it is of boolean type, so we need to specify false and true। और जैसा कि हमने अभी टेबल माइग्रेशंस में कॉन्फ़िगर किया है, तो हमें माइग्रेशन दोबारा से रन करनी पड़ेगी, बट इस बार फ्रेश वाली। या कंप्लीटेड, हम दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे एंड वी आर बैक। ग्रेट, इसको भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो माइग्रेशंस कंप्लीट हो गए, अब हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी चेक करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम कोई टाइटल डालते हैं, लेट्स Laravel 8 और क्रिएट। ओके, लेट्स रिफ्रेश आवर डेटाबेस, and yeah, we have our Laravel 8 title, and as you can see we have a default value in our completed column, that is 0, this means false, and true means 1। ओके, तो हमने अपना टाइटल यूज़र से लेकर डेटाबेस में डाल दिया, और यही हमें हमारा ग्रेड का पार्ट है। ठीक है, बट लेकिन अभी हम जब ग्रेड पे क्लिक करते हैं तो हमें ये ब्लैंक पेज दे रहा है, तो मैं इसको रिटर्न करवाना चाहूँगा उसी पेज पर, ताकि वो दोबारा से और ऐड कर सके, यूज़र दोबारा से और ऐड कर सके। लाइक रिटर्न, वी कैन यूज़ रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। लेट्स जस्ट सेव, रिफ्रेश, लेट्स बैक, रिफ्रेश। और अभी अगर मैं अरिहंत को ऐड करते हैं क्रिएट, एंड या हम उसी पेज पे दोबारा से आ गए, हम इस बार ब्लैंक पेज पर नहीं गए, और हम अपनी डेटाबेस भी चेक कर ले रहे हैं। या वी हैव गॉट अरिहंत, ग्रेट। बट लेकिन ऐसे यूज़र को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि टू डू क्रिएट हुआ भी है कि नहीं, तो हम एक यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो
हम सेशंस का यूज़ करेंगे लाइक बट हाँ ओके ठीक है, रिडायरेक्ट बैक विद सक्सेस मैसेज that is to do, oops, I just want to name it capital, to do created successfully, SUCCESS successfully. ओके, तो अब मैं सिंपल यहाँ पर सेशंस वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा, मैं कंपोनेंट्स यूज़ करूँगा। तो अब हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा एक PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट का नाम रखेंगे अलर्ट। couldn't open, okay, I think I've just PHP artisan make component, okay, it's artisan, no, it's not artisan, it's artisan, as I've just said, मुझसे टाइपोस होते रहते हैं, still I named it wrong. PHP artisan make component alert, okay, yeah, component created successfully, as we can verify it inside app view, and we have a component alert.php, and we have also our view file of component, that is alert.blade.php. Great. So we can here specify like at the rate if session has success message, SUCCESS success, if सेशन के पास अगर सक्सेस मैसेज है तो हमें डिस्प्ले करवाना है, राइट? तो हम सिंपली डिस्प्ले करवा देंगे सेशन गेट मैसेज सक्सेस, SUCCESS, so many typos today, at the rate if, and let's just say end if. ओके ग्रेट। सेशन के अंदर हमने एस हैज सक्सेस, अगर सेशन के पास सक्सेस है तो सेशन से मैसेज लेके आ जाओ सक्सेस, ठीक है। अब हमें इसको कहाँ शो करवाना है, हम इसको फॉर्म के बिल्कुल ऊपर ही शो करवाते हैं इन H3, और हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे ALERTX अलर्ट, ये एक हमने टैग बनाया। ओके, लेट्स जस्ट चेक, let's just say Laravel 2020 in create. Yeah, as you can see, to do created successfully, we did it, and we have also get this inside our database too. Okay, अब एक चीज़ और, अभी अगर यूज़र क्रिएट वाले फॉर्म को खाली छोड़ देता है तो फिर एक एरर आना चाहिए, तो उसके लिए हम वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। वो हम अपलोड वाले सेक्शन में करते हैं क्योंकि वहीं से रिक्वेस्ट आ रही है, और इसको हम डॉलर, पहले हम इसको वैलिडेट करेंगे, और वैलिडेट में क्या होना चाहिए, जो हमारा टाइटल वाला नेम है, टाइटल वाला इनपुट है, वो एक तो होना चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है, और उसकी बहुत सारी कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो हम मैक्सिमम कैरेक्टर्स 225 दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये चेक करेगा कि जो टाइटल कॉलम है उसमें कुछ है या नहीं है, रिक्वायर्ड है या नहीं है, और फिर उसके बाद चेक करेगा कि और वो मैक्सिमम उसमें 255 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एक एरर शो करवाना है, राइट? तो एरर शो करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेट हमें वैसे ही एरर्स देता है, तो बस हमें अब एरर शो करवाने हैं, तो दोबारा से हम अलर्ट इसमें देंगे और यहीं पर यूज़ करेंगे अपना एल्स इफ, और यहाँ देंगे डॉलर एरर्स एनी, यानी कि अगर एल्स इफ कंडीशन चेक करो कि अगर कोई एरर्स हैं तो एट द रेट फॉर ईच डॉलर errors all as dollar error, just display the error,
and let's just end for each. या ग्रेट। तो अभी मैंने क्या किया, एक नई कंडीशन बनाई जिसमें अगर कोई एरर है, एरर्स एनी, तो एरर्स को लेकर वो एज एरर और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। अगर भी अभी कुछ भी फिल नहीं करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो आपने देखा द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ये मैंने कहीं नहीं लिखा, इसने खुद ही लिखा टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। यही काम होता है वैलिडेशन का। और अभी अगर मैं इसको 255 कैरेक्टर से ज़्यादा कर दूँगा तो ये दूसरा एरर देगा, मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यही वैलिडेशन का काम होता है। सो आई थिंक वी हैव डन आवर क्रिएट पार्ट। इंडेक्स बैक टू आवर इंडेक्स पार्ट। और अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे डेटाबेस में टू डू प्रेजेंट है, लेट्स जस्ट रिफ्रेश वंस। ये जो 3 टू डूज प्रेजेंट हैं इनको शो करना है अपने होम पेज पर, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, let's just close all these. Great. Okay, we are back inside our index. So in here index what we can do, जो भी हमारा डेटाबेस में डेटा है वो आना चाहिए इंडेक्स वाले पेज में, राइट। तो अब हम यहाँ पे टू डू का यूज़ कर सकते हैं, टू डू ऑल। ये क्या करेगा कि जो भी हमारे पास टू डूज़ अवेलेबल है वो सब कुछ रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो और क्या हम क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, लेट्स चेक रिफ्रेश। ओह या वी गॉट इट। बट अभी हमें यहाँ पर आईडी भी मिल रही है, टाइटल भी मिल रहा है, कंप्लीटेड भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है। एक तरीके से हमें पूरी टेबल मिल रही है। तो हम इसमें से सिर्फ टाइटल एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले तो रिटर्न हटाते हैं और टू डू ऑल कैसे कर सकते हैं। ओके, लेट्स जस्ट नेम इट टू डूज। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हमारा पूरा डेटा रहेगा। ठीक है, और फिर हम रिटर्न करवाएंगे डॉलर टू डूज और इसके अंदर टाइटल। ठीक है, चेक करते हैं। प्रॉपर्टी टाइटल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ओके या हमने गलती करी है। वो है कि टू डूज़ बहुत सारे हैं और हम एक ही करके मंगवा रहे हैं। आई मीन टू डूज़ टाइटल सिर्फ एक ही टाइटल देगा जो कि एरर देगा, क्योंकि एक से ज़्यादा अवेलेबल है और इस इंस्टेंस पे हम ऐसे टाइटल प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे भी हमें ये इंडेक्स वाले पेज के अंदर चाहिए होगा ना, तो हम इससे एक ऐसा करते हैं, एक नया व्यू बनाते हैं। अगर है तो एक इंडेक्स पेज ही, तो हम एक नया व्यू बना सकते हैं और नाम दे देते हैं उसको टू डू डॉट इंडेक्स। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम जाएंगे रिसोर्सेज में व्यूज़ टू डू, और यहाँ क्रिएट करेंगे एक टू डू डॉट सॉरी इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी यहाँ पे भी इंडेक्स रखा है। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट पी एच पी में भी हम HTML5 and here we can say the title of to do home, and right here we can give h1 of like all your to do's, triple s and triple dot. Okay, all your to do's, and now here we can list all our to do's that are present in our database. So for that we can use for each. For each as dollar to do's is dollar to do. अब पहले अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो बताता हूँ कि अभी हमने अपने इंडेक्स वाले फंक्शन में सारे टू डूज़ का डेटा, जो भी हमारे टू डू वाले मॉडल में हमारे जो डेटा है टेबल के अंदर, वो पूरा डेटा लेकर हमने टू डूज़ वेरिएबल में डाल दिया और फिर हमने एक रिटर्न करवा दिया एक पेज, एक व्यू पेज जो कि है टू डू डॉट इंडेक्स, राइट। बट लेकिन अभी तक हमने इसमें कुछ पास नहीं किया, तो हम इसको व्यू को देंगे विद, और what else we can do, we can name this route just like this.
We can give this router name with name todo dot index. Yeah, great. And here we can say redirect instead of view. Redirect to todo dot index. No, I think no, redirect will not work क्योंकि ये एक व्यू पेज है, व्यू ही वर्क करेगा. और मैं भी इसका नेम भी हटा ही देता हूँ. इट्स नॉट रीड इट राइट नाउ, माई बैड. ओके, तो हम रिटर्न कर रहे हैं व्यू टू डू डॉट इंडेक्स विद एज टू डूज डॉलर टू डू. और ध्यान से रखिएगा कि ये बात ध्यान रखिएगा कि हम जो भी वेरिएबल यहाँ यूज़ कर रहे हैं वही वेरिएबल यहाँ यूज़ करना है क्योंकि यही पास होगा हमारे टू डू डॉट इंडेक्स में. अब हम यूज़ कर सकते हैं अपना डॉलर टू डू इज़ टू डू और इसके अंदर हम एक एल आई टैग बनाएंगे जिसके अंदर हम रखेंगे अपना डॉलर टू डू डॉलर टू डू टाइटल. Okay, and let's not forget to end our for each loop. Let's check this out, refresh, and yeah, we have our all our to-dos like Laravel 8 Arihant and Laravel 2020. I know बेकार से to do हैं थोड़े. So it's a great achievement that we have completed this part too. इसमें भी थोड़ी चीज़ और मिसिंग है. लाइक मैं अभी एड क्रिएट पे जाना चाहता हूँ. जो भी मैंने टूगल वाली बात बोली थी कि क्रिएट पेज से इंडेक्स पेज में और इंडेक्स पेज से क्रिएट पेज में, तो सिंपली हम एक लिंक बना सकते हैं जस्ट बिलो हियर एंड से go to create oops, yeah we have got this, but थोड़ा अजीब सा लग रहा है, so we can just put it inside h3 heading. Yeah, let's check it out. Yeah, great. So अब हम यहाँ से क्रिएट में जा सकते हैं, बैक में जा सकते हैं, ग्रेट. अब कोई नया टू डू बना के देखते हैं. लाइक ओके, देखिए मेरे पास ऑलरेडी ऑटो कंप्लीट में ये था अवेलेबल, तो आई गेस ये 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाना चाहिए. तो क्रिएट करके देखते हैं. या द टाइटल में नॉट बी ग्रेटर देन 255 कैरेक्टर्स. यहाँ पर हमारा वैलिडेशन काम करके आया है. ठीक है, तो हम कोई छोटा सा देखते हैं लाइक क्रिएटेड विद रिलेशनशिप्स. ये एक लारावेल में कंसेप्ट है, वैसे वाले रिलेशनशिप्स नहीं है. Let's create, yeah, to do created successfully. Let's go back and yeah, we have created with relationships. Great. So हमारा create part complete हो गया, हमारा index part complete हो गया क्योंकि हम यहाँ पर अब सब कुछ देख पा रहे हैं अपने जितने भी to do's हैं. अब हमारा edit part रह गया, राइट. तो चलो edit वाला part बनाते हैं. We have spent our 33 minutes. अब मेरे को हर एक उसके लिए चाहिए होगा, हर एक टू डू के लिए एक अलग से एडिट बटन चाहिए होगा. सो फॉर देट व्हाट आई कैन डू, इसी एल आई के पास में मैं एक लिंक बनाते हैं और उसको नाम देते हैं EDIT एडिट. रिफ्रेश, या वी हैव आवर एडिट बटन्स. बट अभी इसमें एक प्रॉब्लम है. लाइक अभी हम सपोज करो किसी एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अब सबके लिए जितने भी हमारे पास टू डूज़ हैं उसके लिए सिर्फ एक ही एडिट पेज बना. और अभी अगर हम किसी टू डू को एडिट करते हैं तो वो बाकी टू डूज़ के साथ भी छेड़छाड़ करेगा. तो ऐसा ना हो तो हम एक डायनेमिक राउट बनाते हैं जो कि इनकी आईडीज़ पास करेगा. ठीक है, लाइक अगर भी हम लारावेल 8 पे एडिट का बटन क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि लारावेल 8 जो कि हमारा कहाँ पर है, इसकी जो आईडी है 1, वो इस आईडी को भी पास करे और सिर्फ एडिट पार्ट लारावेल 8 का ही खोले. ठीक है, सो फॉर दैट वी कैन यूज़ हियर a set
and inside which we can say slash and edit. No, or else we can say slash dot, we are using concatenation, and dollar to do id dot slash edit. तो अभी हम यहाँ पे टू डू ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। टू डू से हमारे पास टाइटल आया तो हम टू डू से आईडी भी ले सकते हैं, जो कि हमने ऐसे लिए। फिर हमने, तो ये जो राउट बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, स्लैश जो भी हम टू डू पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी स्लैश एडिट। ओके, सो वी हैव क्रिएटेड आवर डायनेमिक राउट। अभी हमें इसी के जैसा वो बनाना पड़ेगा, वेब डॉट PHP में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपना राउट एडिट वाला। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बीच में एक आईडी आनी चाहिए, और डायनेमिक का राउट्स के लिए हम ऐसे क्रिएट करते हैं या, और एडिट में हम जो हमारा एडिट फंक्शन है उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब इसमें हमारी फंक्शन में आईडी आ रही है, राइट। तो हमने आईडी यहाँ ले ली और हम आईडी को ही रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। लेट्स जस्ट से रिफ्रेश, और मैं लारावेल लिट पे क्लिक करूँगा एंड या वी हैव गॉट आवर आईडी 1। एज यू कैन सी वी हैव आईडी 1। बाकी को भी टेस्ट, ओप्स, आई हैव जस्ट क्लिक बैक हियर, गो बैक टू डूज एंड लेट्स गो बैक and say Laravel 20 Arihant 2, great, and then we have 3 here, great, and then we will click, we have got 4। okay, so finally we are getting our IDs। जो भी हम जिस टू डू पे क्लिक करेंगे उसी ही टू डू की आईडी आएगी। ओके ग्रेट। तो अब हमें क्या करना है, हम एडिट वाले को पहले हम एक व्यू करवाएंगे रिटर्न, जो कि होगा वैसे ही जैसे हमने इंडेक्स का क्रिएट बनाए थे, टू डू डॉट एडिट या। और इस बार हम टू डू डॉट एडिट में अब जैसे हम आईडी ले रहे हैं, अगर आईडी सिर्फ यहीं तक ही रह जाएगी तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैं व्यू के साथ साथ उसको विद देके इसमें आईडी भी पास करूँगा, राइट, वरना फिर आईडी का तो कोई यूज़ ही नहीं हो जाएगा। और फिर आपको समझ में आएगा कि फिर हम इसी आईडी से उसको टू डू को एडिट करेंगे। डॉलर आईडी, तो हमने रिटर्न करवाया जैसे अभी हमने इंडेक्स को रिटर्न करवाया था विद टू डूज, उसी की तरह हमने उसमें एडिट को आईडी की तरह रिटर्न करवाया एडिट वाले पेज पे विद आईडी। ओके, सो वी हैव कॉन्फिग आवर कंट्रोलर, लेट्स क्रिएट a new view named edit.blade.php, edit.blade.php। okay, and here we have HTML5, we can say to do edit। और ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है जो कि हमारा क्रिएट वाला पार्ट था, तो हम क्रिएट वाले से ही ले लेते हैं थोड़ा बहुत कंटेंट, पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बस टू डू क्रिएट की जगह मुझे चाहिए टू डू एडिट, और क्रिएट योर टू डू की जगह मुझे करना है एडिट योर टू डू। और ये ब्लेड फाइल अभी के लिए, सॉरी, ये मेरे को वैलिडेशन वाले एरर्स और सक्सेस मैसेज अभी नहीं चाहिए। हम फॉर्म बनाएंगे, उसमें अपलोड नहीं होना चाहिए, हमारा एक्शन होना चाहिए एडिट कर रहे हैं तो लेट्स जस्ट से मॉडिफाई, और वी कैन से अपडेट ऑल्सो। या हम एडिट को, हम टू डू को एडिट करें तो वी कैन से अपडेट, और इसमें हमारा वही टाइटल होगा, बट इस बार हमें वैल्यू भी देनी है। ओके, वेट, वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा टाइटल आएगा वो इस इनपुट के अंदर पहले से ही फिल हो जाना चाहिए। ओके, मैं इसको बाद में दिखाऊंगा। वैल्यू को अभी हटा देते हैं, पहले फॉर्म ही क्रिएट करते हैं। बी आर है अपना बैक बटन है, ठीक है। लेट्स जस्ट रिफ्रेश, गो ऑन टू एनी एडिट पार्ट एंड या वी हैव गॉट आवर एडिट पार्ट। बट अभी इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे टू डू
का जो टाइटल है वो भी भेजना है। तो जब मेरे पास आईडी आई रही है तो मैं यहीं पर ही फाइंड कर ले रहा हूँ टू डू मॉडल से, टू डू फाइंड विद आईडी। ओके, और इसको मैं एक ही टू डू आ रहा है तो एक वेरिएबल बना ले रहे हैं टू डू। और अब आप बोलेंगे कि टू डू वेरिएबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये अपने अपने फंक्शंस के अंदर हैं तो इनका स्कोप भी डिफरेंट है। यानी कि जो इस वाले टू डू का वेरिएबल है, सॉरी इस वाले टू डू वेरिएबल का जो स्कोप है वो एडिट वाले फंक्शन तक के अंदर ही है। सिमिलरली जो इस वाले टू डू का जो स्कोप है वो अपलोड फंक्शन तक के अंदर ही है। ओके, तो हमने क्या किया, मॉडल से हमने एक फाइंड मेथड चलाया जिसमें हमने आईडी पास कर दी ताकि वो जो भी हमारी आईडी आई है उसका आईडी का पूरा डेटा दे दे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे पास कर सकते हैं डॉलर अपडेट टाइटल करके एक फंक्शन बनाते हैं। अपडेट सॉरी व्हाट वी कैन से, बहुत सारे मिस वर्ड्स हो रहे हैं। अपडेट टाइटल करके एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम डॉलर टू डू और लेट्स जस्ट से टाइटल TITL टाइटल। ओके, या तो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास आईडी आई उसमें से हमने जो भी आईडी है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा टाइटल है टू डू का वो हमने अपडेट टाइटल के अंदर वो करवा दिया। और अब जैसे हम आईडी पास कर रहे हैं हम सिमिलरली TITL टाइटल पास कर सकते हैं विद अपडेट टाइटल, और वी कैन से या सफिशिएंट है। ठीक है, टाइटल के नाम से हमने अपडेट टाइटल पास कर दिया। और अब हम एडिट वाले उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं। जस्ट हियर वैल्यू इक्वल्स डॉलर टू डू TITL टाइटल। लेट्स जस्ट चेक, हमने टू डू ही बनाया था और टू डू का टाइटल ही आया। ओके, और टाइटल ठीक है। हमने आईडी से ली और सिमिलरली हमने जैसे आई थिंक एडिट में अपडेट ओके राइट, और टू डू टाइटल ले लिया। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट, रिफ्रेश एंड वी हैव वन एरर, अनडिफाइंड वेरिएबल टू डू। ओके, व्हाट वी हैव डन रॉन्ग, हमने एक टू डू वेरिएबल बनाया, उसको हमने अपडेटेड टाइटल के अंदर रखा, फिर उसको हमने टाइटल के ही नाम से कॉल किया। और जैसे हम आईडी पास कर रहे हैं क्या एरर आया है, टू डू। ओके, आई गेस टाइटल हमें इस अपडेटेड टाइटल की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल टू डू पास करवाते हैं टू डू, और यहाँ पे भी टू डू लिखते हैं और फिर यहाँ पर हम डॉलर टू डू TITL टाइटल लिखते हैं और अब चेक करते हैं, रिफ्रेश, या वी गॉट इट। दोबारा से चेक कर ले रहे हैं। अब मैं एडिट करने वाला हूँ लारावेल क्रिएटेड विद रिलेशनशिप्स को, एडिट, और हमारे पास वही टाइटल आ रहा है, ग्रेट। तो अब क्या करना है, जैसे हमने जो भी हम एडिट करेंगे वो हमारा अपडेट हो जाना चाहिए डेटाबेस में, और जैसे ही डेटाबेस में अपडेट होगा तो वो हम डेटाबेस से फैच करें अपने इंडेक्स वाले पेज में, वहाँ पर भी वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बट बिफोर दैट जो हमारा एक्शन वाला है वो हमें कहाँ, जो फॉर्म है वो हमें भेज रहा है अपडेट पर, राइट। तो और हमने यहाँ पर अपडेट के नाम से कुछ भी नहीं बनाया। ओके, तो एक राउट बना लेते हैं एंड लेट्स जस्ट नेम इट अपडेट। अपडेट, अब यहाँ पे मैं गेट यूज़ नहीं करूँगा, मैं पैच यूज़ करूँगा, पैच मेथड। और जैसा कि आप देख सकते हैं HTML में
कुछ भी पेज के नाम से मेथड नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर एक हैक यूज़ करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा मेथड पैच। अब ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा इंडेक्स पेज में हमने हमारे पास जो टू डू अवेलेबल था उसको हमने एडिट किया। और फिर एडिट में हमारे पास ये फॉर्म आ गया, उसके अंदर टाइटल आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, तो एडिट करके हमें इंडेक्स वाले पेज पे वापस कर देना चाहिए और वहाँ पर वो डेटाबेस में अपडेट भी हो जाना चाहिए। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पे वैल्यू क्रिएट नहीं आएगी, एक्चुअली एडिट आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्रिएट थी, अब यहाँ पर एडिट है। ठीक है, ग्रेट। ओके, तो हमें अब अपडेट वाला राउट रेडी करना है अपना कंट्रोलर के अंदर। लेट्स जस्ट से पब्लिक फंक्शन अपडेट या हियर। तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, मैं अपडेट वाले राउट पे पहुँचूँगा और अपडेट वाले राउट पर मेरे को सारा फंक्शन परफॉर्म करना है अपडेट करने का टाइटल को। सो व्हाट वी कैन डू, just like we are passing IDs in edit part, we can pass the ID here also. But how? Because हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ दो ही इनपुट हैं, नेम और वैल्यू के नाम से। ओके, तो सबसे पहले तो हम फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। वी कैन हैव अ रिक्वेस्ट हियर एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले वैलिडेट करवा ले रहे हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है। वैलिडेशन पार्ट में अपलोड वाले सेक्शन से ही ले लूँगा, क्योंकि सेम ही रहेगा कि इसका टाइटल वही होना चाहिए, टाइटल नेम ही है, टाइटल रिक्वायर्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। ग्रेट। एंड नाउ मैं एक यहाँ पर ऐसा करते हैं, आईडी हमें चाहिए होगी, तभी तो हम उस आईडी के हिसाब से फाइंड कर पाएंगे इसको। सो हियर वी कैन फाइंड टू डू फाइंड विद आईडी और इसको हम देंगे नेम, क्योंकि हमारे पास अपडेटेड आ रहा है अब, सॉरी, ups, so many typos today. Update to do, I think, yeah, update to do is best. Let's not forget to put equal sign here. अपडेट टू डू सबसे पहले फाइंड करेगा और फिर इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करेगा अपडेट टू डू, एंड हियर वी जस्ट सिंपली से अपडेट, एंड क्या अपडेट करना है हमें, टाइटल, और इसकी वैल्यू हमें देनी है जो भी हमारी रिक्वेस्ट से आई है, रिक्वेस्ट TITL टाइटल। ओके, ग्रेट। हमने वैलिडेट करवा लिया, ये करवा लिया, और फिर हमने आईडी पास करके वो टू डू स्पेसिफिक टू डू फाइंड करवा लिया और उसको हमने उसके टाइटल को हमने अपडेट कर दिया जो भी हमारे फॉर्म से टाइटल आया है। लेट्स चेक इट आउट। अभी क्रिएट विद रिलेशनशिप्स है, मैं इसको पूरा क्रॉस आउट करके कुछ भी डाल दे रहा हूँ। ओके, लेट्स जस्ट से एडिट, और हमारे पास आया है कोई एरर, वन पास। ओके, या हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट का तो कर लिया, बट हमने अभी आईडी पास नहीं करवाई है, तो वो हमें, मैं इंडेक्स वाला हटा देता हूँ, तो वो हमें एडिट वाले से ही पास करवानी पड़ेगी। अब हम आईडी कैसे पास करवा सकते हैं, फॉर दैट हम एक इनपुट ले सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि एक इनपुट बनाते हैं, ठीक है, टाइप उसका रखेंगे नंबर, ठीक है, और फिर इसके अंदर हम इसको नेम दे सकते हैं, नेम आईडी, और इसकी हम वैल्यू वैसी ही पास आउट करवाएंगे जैसे हमने टू डू टाइटल की करवाई थी, राइट, क्योंकि जब हम टू डू से टाइटल ले सकते हैं हम टू डू से आईडी भी ले सकते हैं। टू डू आईडी, या लेट्स चेक इट आउट, लेट्स गो बैक, रिफ्रेश। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो इनपुट हो गए, क्योंकि हमारे पास इसमें आईडी भी आ रही है, राइट। अब अब हम ऐसा करते हैं, इसको हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से स्टाइल,
and we can say display none. Let's check it out, refresh, या अब पीछे ही पीछे क्या हो रहा है, हमारे पास एक तो टाइटल आ रहा है और आईडी भी आ रही है, जो कि हमने आईडी हाइड कर दी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और हमने टाइटल रखा हुआ है और हमने आईडी इसलिए हाइड करी है, एक तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये है कि हम उसको पास कर सकें अपने अपलोड वाले राउट में, ताकि फिर वो यहाँ पे कोई एरर ना दे और उसको यूज़ कर सके एक स्पेसिफिक टू डू को फाइंड करने के लिए, राइट, कि हम कौन सा चेंज कर रहे हैं. लेट्स चेक इट आउट, रिफ्रेश, लेट्स से blah 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 and edit. Okay, again too many arguments. What have gone wrong now? I think okay, हमें आईडी की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट के थ्रू ही आईडी ले सकते हैं. या रिक्वेस्ट आईडी, अब कोई एरर नहीं आएगा आई गेस. और इस वक्त ढंग का टू डू पास करते हैं क्योंकि जितनी बार भी बेकार टू डू पास करें एरर ही आ रहा है. लेट्स जस्ट से ABCD एडिट, या इस बार कोई एरर नहीं आया, ब्लैंक पेज आया क्योंकि अभी हमने कुछ भी रीडायरेक्ट नहीं करवाया. बट अभी हम जैसे डेटाबेस में जाके देखेंगे तो जो हमारा क्रिएटेड रिलेशनशिप्स है उसको हम जैसे रिफ़्रेश करेंगे ये ABCD से अपडेट हो गया. और अभी अगर हम वापस जाके देखेंगे अपने इंडेक्स पेज में तो अपना ABCD एडिट हो गया. ग्रेट. अब हमें सिर्फ रीडायरेक्ट करवाना है, राइट. तो रिटर्न करते हैं रीडायरेक्ट, और इसमें हम इस पर एडिट पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट इंडेक्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवाएंगे. तो उसके लिए हमें एक नेम देना पड़ेगा, टू डू डॉट इंडेक्स, और विद अपना मैसेज, सक्सेस मैसेज, जो कि होगा टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली. ओके, रिटर्न हमने करवाया रीडायरेक्ट टू डू डॉट इंडेक्स विद सक्सेस मैसेज, डेट इज़ टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली. और फिर हमें नेम भी देना पड़ेगा अपने राउट को, जो कि मैं पहले कर रहा था बट उस टाइम ज़रूरत नहीं थी, बट अब ज़रूरत है. टू डू डॉट इंडेक्स ज़रूरत तो नहीं है, वी हैव स्टिल हैव मैनी ऑप्शंस, बट लेट्स जस्ट डू समथिंग न्यू, राइट. आफ्टर ऑल वी आर लर्निंग. और अभी जैसे सक्सेस मैसेज तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट अपने इंडेक्स वाली फाइल में मैंने कोई ब्लेड कंपोनेंट नहीं दिया, तो कहाँ देना सही रहेगा, क्रिएट के ऊपर नीचे, राइट. ओके, हम इसको H4 में दे सकते हैं, और नो H3 में देते हैं क्योंकि हमने पहले भी H3 में ही दिया था. और यहाँ लिखते हैं X-ALERTLR. Oh, so many typos today. Yeah. Finally, check it out. ABCDS को हटाकर दोबारा से create with. Okay, let's do this Cosmos today. And edit. Okay, 404 not found. To do dot index. What went wrong? We have given name to our to do dot index, and we are getting to do dot index. Name is to do dot index. Redirect to do dot index. Okay, let's just use view to do dot index and get rid of our name. We will configure it in some another tutorial. Refresh, let's go back, refresh, Cosmos, index.plate.php, undefined variable to do's. Let me go back first. It got edited,
I think we have some mistake inside our to do controller. To do dot index view with success message this. Hmm. And inside this we have our index, simply index. Okay, redirect on this. Let's refresh, go back to Cosmos 1, edit. We are getting some error, and if we go back it is getting update, यानी कि कुछ redirect करने में ही problem हुई है. What if I just use return redirect to index with this? Let's check it out. Cosmos, let's again make it Cosmos, edit. Yeah, great. And we've got our success message also. To do updated successfully. Let's refresh. Yeah, great. तो हमारा लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट. लाइक हमने क्रिएट पार्ट बना लिया, अपडेट पार्ट बना लिया और होम पेज पे शो भी करवा लिया. ठीक है, यहाँ एक बार सब कुछ चेक कर लेते हैं. एक नया क्रिएट बनाते हैं, टू डू बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं लेट्स गेट रिड ऑफ Laravel and say React JS. Create, to do created successfully. Let's go back and we have a React JS. Let's edit it and let's say React Native, and let's click on edit. To do updated successfully, React Native, let's say Cosmos. And if I just okay, yeah, one more thing. अगर कोई वैलिडेशन एरर आता है तो वो हम होम पेज पे शो नहीं करवाएंगे, वो हम इसी एडिट वाले पेज पे ही शो करवाएंगे. So for that we need to use here x dash alert inside h3. Let's check it out. Cosmos को हटाते हैं, कुछ नहीं लगाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे. द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड. तो कॉस्मोस को अब हम कॉस्मोस 2 से वो करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे. नाउ वी हैव एडिटेड इट. लेट्स से अरिहंत, कुछ भी नहीं लगाएंगे, एडिट करेंगे. टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड. लेट्स से अरिहंत जैन, एडिट. या सारी फंक्शनलिटीज़ काम कर रही हैं. तो अब हम मूव करते हैं कंप्लीटेड वाली तरफ, क्योंकि अभी अगर कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको कैसे अपडेट करेंगे डेटाबेस में और अपने फ्रंट एंड में. सो फॉर देट मेरे को यहाँ पर एक कंप्लीटेड बटन चाहिए होगा सब में. सो वी कैन गो टू आवर index.build.php. वी कैन रिमूव दिस एडिट पार्ट एंड हियर जैसे हमने एडिट वाला बटन ऐड किया था वैसे ही हम ऐड करेंगे अपना कंप्लीटेड वाला पार्ट. completed. नेक्स्ट इसमें सी कैपिटल. और ये भी हमारा डायनेमिक होगा क्योंकि कौन सा टू डू कंप्लीट हुआ है ये भी हम आईडी से फाइंड करेंगे. टू डू आईडी ओके completed. We have our completed button. I know it's looking ugly. Yeah, let's fine, let's just keep it this only. तो अब completed के लिए हमें एक स्पेसिफिक राउट भी बनाना पड़ेगा. और ये गेट होगा. हम पैच की जगह पुट भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट. हम डायनेमिक आईडी यूज़ करेंगे. आईडी इंडेक्स जैसे completed. यहाँ पे भी हम completed फंक्शन ही बनाएंगे. completed
here we have our completed. Yeah, completed. Inside our to do controller we can make another public, oh my god, typos, public function completed. And yeah, here what we can do, जब भी हम complete पे क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जाना चाहिए हमारा डेटाबेस में। और जैसा कि हमने डायनेमिक राउट बनाया, हम आईडी ले रहे हैं, तो हम आईडी यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और अपना टू डू मॉडल यूज़ करेंगे और उस पर हम नहीं, पहले हम चेक करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं कि लाइक अगर वो कंप्लीटेड जो है टास्क वो पहले से ही कंप्लीटेड है तो ये वाला एक्शन परफॉर्म ना हो, और उसको जो कंप्लीट पे क्लिक किया है वो दोबारा से इनकम्प्लीट हो जाए। लाइक मैं समझाता हूँ कि अभी ये लारावेल 8 है, ये अभी इनकम्प्लीट है, राइट। अभी जैसे मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी मेरे को टूगल दोबारा से करना है कि नहीं, ये अभी भी इनकम्प्लीटेड है, तो मैं दोनों स्टेट में टूगल कर पाऊँ, लाइक कंप्लीट में भी और इनकम्प्लीट में भी, राइट। सो फॉर देट मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ़, बट लेकिन इसके लिए पहले मेरे को मॉडल से लेना ही पड़ेगा टू डू ups to do find with $id, और यहाँ मैं एक और टू डू वेरिएबल बना लेता हूँ। या ये अब हमारी इसके अंदर सारी डिटेल आ गई, नहीं इस आई जो भी टू डू की आईडी है वो हमने टू डू फाइंड से पास करी, तो यहाँ पर जो टू डू वेरिएबल है उसमें वो स्पेसिफिक टू डू की डिटेल आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ डॉलर टू डू जो है वो कंप्लीटेड है या नहीं है, कंप्लीटेड है या नहीं है। अब जैसा कि कंप्लीटेड हमारा बूलियन था, तो अगर कंप्लीटेड होगा तो यहाँ पर ट्रू पास हो जाएगा, फॉल्स होगा तो हम दूसरा एक एल्स बनाएंगे, ठीक है। सो इफ़ टू डू इज़ कंप्लीटेड यानी कि ट्रू है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अपडेट, राइट, टू डू अपडेट। हम क्या अपडेट करने वाले हैं, कंप्लीटेड वाला सेक्शन, कंप्लीटेड विद फॉल्स, क्योंकि अभी अगर टू डू ऑलरेडी पहले से कंप्लीटेड है तो वो इनकम्प्लीट हो जाना चाहिए। तो टू डू अपडेट हमें क्या करना है, कंप्लीटेड इज इक्वल्स फॉल्स, राइट। और हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कहीं और जाकर रिडायरेक्ट ना हो, इसलिए रिटर्न रीडायरेक्ट बैक with a message, with a success message that says to do marked, marked as incomplete, ओके। सो टू डू को हम जैसे अगर वो ऑलरेडी कंप्लीटेड होगा तो हम उसको इनकम्प्लीट बना देंगे और रिटर्न करेंगे विद अ सक्सेस मैसेज दैट इज़ टू डू मार्क्ड एज इनकम्प्लीट। और यहाँ पे मैं ओके, दैट्स फाइन। अभी अगर टू डू कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है, उसमें फॉल्स वैल्यू आती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको अपडेट करेंगे, टू डू अपडेट करेंगे इसको कंप्लीटेड एज ट्रू, और यही वाला ले लेता हूँ और रिटर्न कर देंगे with a success message to do marked as complete, okay, looks fine, let's check it out, let's refresh। अभी मैं लारावेल 8 को पहले मैं डेटाबेस में आपको दिखाता हूँ। लारावेल 8 जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनकम्प्लीट है, राइट। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ कंप्लीटेड,
तो एज यू कैन सी टू डू मार्क्ड एज कंप्लीट, तो जो हमारा लारावेल 8 है वो 0 की जगह 1 हो जाना चाहिए कंप्लीटेड वाले सेक्शन में, या ग्रेट। और अभी मैं इसको दोबारा से इनकम्प्लीट करता हूँ, यू कैन सी टू डू मार्क्ड एज इनकम्प्लीट, लेट्स चेक इट अगेन, या वेरी वेल। तो अब हमने बना लिया है कि हम इसको कंप्लीट भी मार्क कर सकते हैं और इनकम्प्लीट भी मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि यूज़र को कैसे पता चलेगा कि वो मार्क्ड है, वो कंप्लीटेड है या इनकम्प्लीट है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्रॉस आउट कर सकते हैं उसको, राइट। सो फॉर देट हमें उसके लिए इंडेक्स में जाना ही पड़ेगा, और टू डू टाइटल को हम ऐसे नहीं बुलाएंगे, वी कैन जस्ट से लाइक @if, जो डॉलर टू डू है वो कंप्लीटेड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर ट्रू पास होता है, जो डॉलर टू डू है वो अगर कंप्लीटेड है, तो हम ऐसे टाइटल शो नहीं करवाएंगे, वो उसमें लाइक लाइन थ्रू आ जानी चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट से inside a span tag this thing, very well, and here we can give style, style style equals text decoration, that is line through, THROUGH, okay। अभी ये अगर क्या करेगा, टू डू अगर कंप्लीटेड है यानी कि ट्रू है तो एक लाइन थ्रू बना देगा, एल्स एल्स वो क्या करेगा, जस्ट ऐसे की ऐसी शो कर देगा। और हम यहाँ पर एंड कर देते हैं, एंड इफ, लेट्स चेक इट आउट, रिफ्रेश। अभी अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगा क्लिक, तो एज यू कैन सी ये मार्क्ड लाइन थ्रू हो गई एक, और अभी अगर मैं इसको इनकम्प्लीट क्लिक करूँगा तो दोबारा से एक क्लियर हो गया, लेट्स रिफ्रेश। या हम हर किसी के साथ कर सकते हैं, दैट इज़ या वेरी वेरी वेल वेरी वेल, हमने सबको मार्क ऑफ कर दिया, लेट्स सबको इनकम्प्लीट मार्क करते हैं, ग्रेट। अब एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको मार्क ऑफ करूँ, कंप्लीटेड मार्क करूँ, तो ये सबसे नीचे शो होने लगे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इंडेक्स वाले फंक्शन में आता हूँ कंट्रोलर के अंदर, और अभी जैसे मैं सबको टू डू ऑल करके बुला रहा था, अब मैं इसमें एक कंडीशन पास कर सकता हूँ, लाइक ऑर्डर बाय, उप्स, ऑर्डर बाय विद कंप्लीटेड, ठीक है। और फिर हम गेट कर देते हैं, गेट, या बस इतने करना था। अब लेट्स ट्राई करते हैं कंप्लीटेड। अब जैसे मैंने लारावेल को 8 को कंप्लीट किया, वो भी सबसे ऊपर था, वो सबसे नीचे पहुंच गया। दोबारा से अगर कंप्लीट कर दूँ तो वो इनकम्प्लीट कर दूँ तो वो दोबारा से ऊपर आ जाएगा। लग्स अरहिंद जिनको कंप्लीट करते हैं, और या ये सबसे नीचे आ गया, और को भी हम कंप्लीट करेंगे तो सब नीचे होते चले जाएंगे, दोबारा से इनकम्प्लीट करेंगे तो सब अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो हमारी ये फंक्शनलिटी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो हमारा कंप्लीटेड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और अब मूव करते हैं डिलीट वाले पार्ट पे कि हमें कोई टू डू डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम अपने इंडेक्स में आएंगे, और जैसे हमने कंप्लीटेड के लिए बनाया वैसे ही हम एक डिलीट के लिए बनाएंगे। उप्स, क्या हुआ, कंट्रोल सेड, लेट्स जस्ट से डिलीट, DELET, डिलीट। और हम जैसे हम इस डिलीट पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, हम एक तरीके से लारावेल में CRUD ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सो और डिलीट नहीं होता, बस वो डिस्ट्रॉय होता है, या व्हाटएवर। सो अब हमें एक डायनेमिक राउट बनाना है, जस्ट लाइक दिस। कंप्लीटेड के लिए जो किया था ID डायनेमिक राउट, और यहाँ पर अब हम कंप्लीट की जगह करेंगे DELETE, डिलीट। नेक्स्ट जैसे delete, ओके। अब डिलीट फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। आई थिंक नाउ यू गॉट द फ्लो कि कैसे वर्क करना है। पब्लिक फंक्शन DELETE, इसी चीज़ को हम बोलते हैं MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर।
डॉलर ID, क्योंकि हम डायनेमिक ले रहे हैं और उसमें ID पास करवा रहे हैं। और ये डिलीट वाला पार्ट बहुत सिंपल ही रहने वाला है। हम सिंपली क्या करेंगे, एक और टू डू बनाएंगे वेरिएबल, और मॉडल के अंदर फाइंड करेंगे विद द ID $ID। ओके, और सिंपली फिर हम जो हमने वेरिएबल बनाया उस पर ये ऑपरेशन कर देंगे, मेथड कॉल कर देंगे डिलीट। और हम यहाँ पर एक रिटर्न मैसेज भी भेजेंगे, सक्सेस मैसेज। रिटर्न रिडायरेक्ट बैक विद सक्सेस टू डू DELETED deleted successfully SUCCESSFULLY. Okay, let's check it out. We have our delete button। React Native को delete करते हैं। As you can see, React Native चला गया है और वो to do deleted successfully, वो डेटाबेस में से भी चला जाना चाहिए। अभी तो है, रिफ्रेश करता हूँ। As you can see, अब हमारे पास सिर्फ 4 ही to do's रह गए। Let's delete Cosmos 2 also। Yeah, deleted successfully। Refresh। You can see we don't have Cosmos to do also। वेरी वेल, तो आई गेस हमने अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने क्रिएट करवा के देख लिया, फिर शो करवा के देख लिया कि सारे टू डूज़ शो हो रहे हैं कि नहीं, फिर हमने उसको अपडेट भी करवा के देख लिया, और हमने अब इसको डिलीट भी करवा दिया। सो फॉर अ फाइनल टच हम अब सारी चीज़ें करके देखते हैं। लेट्स जस्ट डिलीट ऑल ऑफ देम एंड क्लियर आवर डेटाबेस। Yeah, so let's first create a to-do। Let's say Laravel 8 create to-do created successfully। If I don't give anything here, it will show me validation error, the title field is required। We can go back, we have our Laravel 8 here, we can show here। Okay, let's just edit Laravel 8 to Laravel 2020, or first we can check our validation, like if we pass and nothing, if we pass nothing, and if we click on the edit button, we got our validation error, the title field is required। so let's just say Laravel 2020 edit। या हमने Laravel 8 से Laravel 2020 कर दिया, अपडेट कर दिया, और अब हम इसको कंप्लीट मार्क करेंगे तो ये कंप्लीट भी हो गया, इनकम्प्लीट मार्क करेंगे तो इनकम्प्लीट भी हो गया, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी हो गया। वेरी वेल, तो यहाँ पर हमने अपना टू डू एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है, और वी टुक अबाउट 1 hour 12 minutes। या लेट्स स्टॉप द टाइमर। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसका सारा कोड मैं गिटहब में पुश कर दूँगा, और लिंक कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे कि आपको कोई एरर ना आए, और उसके नीचे एक रीडमी फाइल भी डाल दूँगा, ताकि आपको अपने लोकल सिस्टम में इसको सेटअप करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। So thank you, and don't forget to like, share and subscribe, and hit that bell icon button, so that you can get my every video on time। Okay, thank you। Let's catch you in the next tutorial। Thank you।